آپ چپ قرآن بھی نہیں ہے نا میری بات کے نہیں نہیں جب تک آپ آیت نہیں پڑھیں گے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات یہ اور ہے جو آپ کچھ اور کر رہے ہیں. نہیں آپ قرآن پر بہتان مت لگائیں یا قرآن کی بات کرنی چھوڑ دیں یا پوری آیت پڑھیں. دیکھیں یہ جہالت ہے اسی لیے وہ زندیق ہے مرزا قادیانی. مرزا قادیانی اسی لیے پوری آیت پڑھو. میں پوری آیت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا آپ سنیں تو گے پھر کیوں بات کی اس 2 حرف نکال کر؟ دھوکہ دینا مجھے جاہل سمجھ رکھا ہے. آپ جاہل ہیں بات سن نہیں رہے. تم جاہل ہو بھائی. 2 حرف میری آیت پڑھو. آکش بھائی اس کو ان میوٹ کرنا نہیں آتا یار پھر اب نیچے اتارنا پڑے گا. واہ ظفر صاحب آفرین ہے بھائی. کوفیت نہیں ہاتھ ہونی. Absolutely no brain are you. بھئی یہ ہے دیکھ لیں قادیانیت کہ لا تقربوا الصلاۃ. میں کہہ رہا ہوں بھائی آیت پڑھو پوری آیت پڑھو پورا فقرہ پڑھو. مرزے کے ہم 10 فقرے پڑھ کے سناتے ہیں. نہیں جی وہ دا کنٹیکسٹ قرآن کی ایسی توہین قادیانی کرتا ہے کہ 2 حرف پڑھ رہا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں پوری آیت تو پڑھ تاکہ تیرے قادیانی مرتدین کو پتا تو لگ جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اور مرزے پر تو آتا ہی نہیں. اس کو پتا ہے کہ مرزا تو حرام کی اولاد ہے. ہاں جی بولیں. آیت پڑھیں گے تو بات آگے ہوگی. میں تو آیت پڑھنے کی یہاں کہہ دیں کہ آپ کو آیت نہیں آتی اور آپ دوبارہ یہ دھوکہ نہیں دیں گے مجھے. ذرا بند کریں گے تو میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. نہیں پہلے آیت پڑھیں. میں آیت کی بات ہی نہیں پہلے کر رہا. میں تو آپ کو نہیں تو آپ نے کیوں کہا لا تقربوا الصلاۃ؟ اس بات پر ختم کریں. یہ بات کا فیصلہ ہوگا تو آگے چلیں گے. آپ اگر سنیں گے تو بات نہیں آپ پوری آیت پڑھیں. میں یہ بات جو کر رہا آپ پوری آیت پڑھیں یا توہین اسلام کرنی چھوڑ دیں. وہ تک پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ حتی تغتسلوا. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نہیں پوری آیت پڑھیں. اچھا آپ نے بات نہیں سنی. آپ نے میری بات نہیں سننی. نہیں جب آپ آیت پڑھیں گے تو میں ظفر صاحب 1 سیکنڈ. ظفر صاحب اس پہ میں تھوڑا سا ان کرتا ہوں. اگر آپ نے قرآن کے ایک آیت کے 2 لفظ پکڑ لیے یار 1 سیکنڈ رکے یار پلیز. تو اس سے بہتر ہے کہ پوری آیت پڑھ کے تو اس کا پورا مفہوم سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب بات کیا کرنا چاہتے ہیں. ہاں تو آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ظفر صاحب پوری آیت پڑھیں گے تو میں آگے بات کروں گا. آپ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ نے تو کہا تھا کہ مرزا قادیانی کا صفحہ پیچھے پڑھو تو صفحہ آگے. میں نے آپ کو کہا کہ ایک فقرہ پورا پڑھیں گے. فقرہ قرآن پاک میں آیت کہلاتا ہے. آپ نے وہاں سے 2 حرف پکڑا کے مجھے پیش کر دیا. جہالت کا آپ ایسا نمونہ ہے. اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے آپ کو ایک معمولی بات نہیں سمجھ آتی. مجھے بات سمجھ آتی ہے. تو پھر پڑھیں پوری آیت پھر آگے بات چلے گی. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کو جھوٹا کہتے ہیں یا قرآن کریم کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ. نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں صرف قادیانی کہتے ہیں. سناتے ہیں کہ قرآن مجید تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ یہ بتائیں. آپ مرزا صاحب کی کتابوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. میں نے آپ کو معیار بتایا تھا. جہالت کی باتیں آپ کی نہیں. دیکھیں انہوں میوٹ کرو تھوڑی دیر. دیکھیں آپ فیصلہ پہلے کر لیں کہ آپ نے کس معیار پر بات کرنی ہے. میں نے آپ کو یہ اسی آیت کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ نہیں کہنا. مجھے پوری آیت پڑھنی ہے. اسی طرح میں مرزا غلام قادیانی کی پوری لائن پڑھوں گا. فقرہ ہوگا اس کا مکمل معنی ہوگا. یہ نہیں کہوں گا کہ درمیان میں اس نے یہ لکھ دیا 2 حرف. تو آپ پہلی بات تو ہے کہ قرآن کا اور مرزا قادیانی کی کتابوں کا دور کا بھی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے میں قرآن حدیث سے بات نہیں کرتا. آپ نے 2 مرتبہ میرے سامنے قرآن پاک کی توہین کی ہے. آپ اس کو پیچھے لے جائیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. آپ نے اگر پڑھنی ہے اس کے بعد قرآن کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو توہین قرآن نہیں کریں گے لا تقربوا الصلاۃ کہہ کے اور دوسروں پر بہتان نہیں باندھیں گے. اگر آپ کوئی بات کریں گے اس کا حوالہ کتاب کا نمبر صفحہ نمبر کس نے کہا کب کہا کیسے کہا وہ پورا آپ حوالہ پیش کریں گے. یہ نہیں میں آپ کی فضول باتیں سننے نہیں آیا ہوں یہاں پر.
आपसे मैं बात करूंगा, आपने पेशवा का जिक्र किया तो शुरू हो जाए कि आप मुझे बताएं कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है उसकी तारीख पैदाइश क्या है। आप अपनी ये तो आपको पता होगा, आप कादियानी हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं किया। आप इस बात को छोड़ें, मुझे आप ये बताएं। ना देखें, आप ही सवाल, आपके सवाल तो नहीं ना, आपको सनद तो नहीं है ना किसी चीज पर कि आपका सवाल का तो जवाब चाहिए, मेरे सवाल का जवाब ही ना है। आपने पेशवा पर बात की, आपने कहा कि किसी मजहब के पेशवा को गाली नहीं देनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसका एक दीन होना चाहिए। तो आपने, मैंने आपको बता दिया और आपको बिल्कुल साफ पता है कि हम लोग मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा, मुर्तद, ज़ंदीक, दायरा इस्लाम से खारिज, काफिर समझते हैं। यह हमारा ईमान है और आपका ईमान इसके बिल्कुल उलट है। तो आप उस पेशवा पर बात करें कि सबसे पहले तो उसका दावा मैं आपको दिखा देता हूं कि मुझे नबूवत सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में मिली है, तो आप क्यों घबराते हैं उस पर बात करने से? मैं आपको हवाला जात से बात करूंगा। मैं आपको मजाल है कि, और हवाला जात की जब मैं बात करता हूं तो मैंने उन किताबों को भी पढ़ रखा है जो आपकी जो है ग्रोह छापता है, और मैंने सैकड़ों और किताबें भी पढ़ रखी हैं जो आप लोगों के बारे में लिखी गई हैं। और मैंने ऐसे पेपर जिन्हें थीसिस कहा जाता है, मैं आपको 2 PhDs के हवाले दूंगा। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की है PhD और दूसरी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। दोनों लोग जो हैं इस वक्त, एक जो है कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है कंपैरेटिव रिलीजन का, दूसरा फ्लोरिडा में, दुनिया के माहिर गिने जाते हैं। मैं आपको मुस्तनिद हवाले दूंगा, आपने मुझे आए बाएं शाएं मेरे साथ बुराए मेहरबानी ना करें, इसीलिए मैंने आपसे बड़ी माजरत करता हूं। कुरान का अगर आप दोबारा कोई चीज पढ़ेंगे तो पूरी आयत पढ़ेंगे और कुरान की टेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आती तो फिर खामोश हो जाएं उस बात पर, तौहीन ना करें। तो अब बात करें अपने पेशवा पर, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि उसको गाली देना जायज है कि नहीं है, और फिर हम गाली की डेफिनेशन भी कर लेंगे। पहले मुझे बताएं मिर्जा गुलाम कादियानी की तारीख पैदाइश क्या है? ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੋ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ Yeah, ਉਹਨਾਂ please ਨੂੰ double tap everybody, please. ਯਾਰ ਸਰ ਡਬਲ Yes, ਭਾਈ, ਟੈਪ call ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਾਏ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਲਾਡੋ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਾਕਸ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੜਿਆ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਰੋਜ਼ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਪਲੀਜ਼, ਗੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੜਿਆ। Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी भी ना डॉक्टर साहब, कभी भी ये कादियानी जो है ना वो पूरी बात का जवाब नहीं देते। अब आप ये देख लें, ये ना ऐसा बचपन से घोल के इनको पिलाया गया है ना कि जब भी आपसे कोई बात करे ना हवाले के बारे में, तो आपने ये आयत पेश करनी है और आयत के भी 3 अल्फाज पेश करने हैं सिर्फ, और वो यही करते हैं। हर एक कादियानी जो है ना वो वेल ट्रेंड है, जिसको कहते हैं ना, वो जिसको कहते हैं ना घुट्टी में डाल के पिलाई हुई चीज़ है कि आपने जो है ना ये वाली बात पेश करनी है। जबकि आप क्या हैं, आप PhD हैं, ठीक है, और PhD के आप पेपर्स भी चेक करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हवाला जो है वो किस तरह से पेश किया जाता है। तो ये लोग हमेशा यही करते हैं। आसिफ साहब सबसे बड़ी बात उसने ये कहा था, क्वेश्चन उसका था, हमने नहीं उठाया था क्वेश्चन। उसने कहा था कि किसी के गाली बात दी जा सकती है, तो मिर्ज़ा ने अपनी किताबों में 1389 दफ़ा गाली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि एक इंसान जो है, नॉर्मल इंसान, सिर्फ सादा एक इंसान ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उसने अपनी किताबों में लिखा है। तो शायद भाई के पास है। डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है, डॉक्टर ओली स्पीड साहब से एक सवाल करना है जी। शायद जी, अस्सलाम वालेकुम मुझे डॉक्टर एक साहब। बात कर लेने वाले कि मैं आपको एक बात बता दूं। देखें, ये जो जफर साहब ने बात कही, मैं सुनने वालों के लिए बता देना चाहता हूं, कभी किसी ने नहीं कहा कि कुरान पाक में लिखा है ला तक़रबुस सलात, के नमाज के करीब ना जाओ। ये सिर्फ जहालत में कादियानी कहते हैं, और मैंने किसी आलिम से, मैं ईसाईयत मेरा मौजू है असल में, कादियानियत तो था ही नहीं कभी, वो तो इन्होंने मुझे पढ़ा दिया।
تو جب کوئی جاننے والا بات کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ لا تقربوا الصلاۃ. یہ مجھے کہیں سے لکھا ہوا لا دیں کہ یہاں سے تو میں ان کی بات مان لوں. اور آیت تو پوری بہت بڑی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. دیکھیں میں یادداشت سے پڑھتا ہوں تو بعض کا غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوگا. تو یہ اتنی بڑی آیت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ مرزا قادیانی کا تو صفحہ پہلا پڑھو اور پھر بات جو پڑھو تو ہمیں سمجھ آئے گی, تو قرآن کی اتنی توہین مرزائیوں. میں کہتا ہوں کہ میں تو اتنی لمبی آیات تو مرزا مسرورہ بھی نہیں پڑھ سکتا. 2 مہینے لگ جان گے انہوں ایک اتنی لمبی آیات پڑھن نو. وہ تے پوری زندگی نہیں پڑھ سکتا جی. 2 مہینے تے بہت تھوڑا وقت ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا کہ مرزا غلام کا جو نام ہے اصل بچپن میں یہ یہی تھا یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس کا بچپن میں نام یہ نہیں تھا, یہ بعد میں رکھا گیا ہے. کوئی ہے اس بارے میں کوئی؟ ہاں اس کے بارے میں, اس کو جو ہے نا بچپن میں 10 بندی کہا جاتا تھا. اس کا ایک نام سندی تھا اور ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اس کا نام غلام احمد تھا. یہ بعد میں ہمیں یہ تحریر ملتی ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک تعویل گھڑ رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی ماں, یہ میں مطلب متن ہی بیان کر رہا ہوں, کہیں گے تو حوالہ نکال دوں گا, کہ اس کی ماں جو تھی چراغ بی بی, وہ اس چونکہ بچپن میں یہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جو پاگل پن کی نشاندہی کرتی تھی. سرکنڈے سے چڑیوں کے گلے کاٹتا تھا, پخانے پیشاب والے چھپڑ میں سارا دن نہاتا تھا اور پخانے بدبو سے بھرا ہوا گھر آتا تھا. اس کو روٹی دی جاتی تھی تو راکھ روٹی پر رکھ کے کھانا شروع کر دیتا تھا. یہ تو نارمل باتیں تو نہ ہوئی. تو وہ اس کو کہتے ہیں ایک درگاہ پر لے کے گئی اور اس کے لیے منت مان دی, اور وہاں ایسا مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی 10 مرتبہ کچھ چڑھاوے کی منت مانے تو اس کو 10 اس ریفرنس سے 10 بندی کہنا شروع کر دیتے تھے. اس کا اصل نام سندی تھا, شاید کیوں رکھا گیا مجھے, اور بعد میں لوگوں نے یہ بنا لیا کہ یہ 10 بندی سے بگڑ کے سندی ہو گیا. تو یہ مطلب سب جھوٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بڑے قابل احترام قسم کے لوگ ہیں, میری نظر میں تو ان کی بڑی عزت ہے, جو قادیانیت کی کتابوں کو اندر سے باہر تک جانتے ہیں. اور آپ کو حیرانی یہ ہوگی کہ قادیانی خود اپنی کتاب کو نہیں پڑھتا اور جانتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی پیدائشی قادیانی نے آج تک مرزا قادیانی کی ساری کتابیں کیا 10واں حصہ بھی نہیں پڑھی ہے, بلکہ 90% نے تو ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے. آپ اس پر کیا بھاگے نا, وہ بھاگے ایک سادہ سا سوال کا جواب نہیں دے سکتے. وہ تو بہت دیر پہلے کے بھاگے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے ان کو کال ڈالی تھی لیکن وہ کال اٹھا نہیں رہے. نہیں وہ کیا کال اٹھائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ان کو شروع میں ایک بات بتا دی تھی کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ میرے آگے نہیں کہنا. تو مرزے کی بات آئے تو اب صفحہ پیچھے پڑھ, صفحہ قرآن کی بات ہو تو توہین قرآن, توہین رسالت. لا تقربوا الصلاۃ لوکی کہندے نے, کیڑے لوکی کہندے نے, سوائے مرزئی لانتی دے کوئی ایش گل نہیں کہندا. یہ آپ قادیانی دیکھیں, کسی قادیانی کا مسلمان ہونا تو کوئی میرے لیے تو مجھے کوئی فائدہ ہے اس کا یار. میں کیا میں تو ان سے جنہوں نے اسلام, اب ضیاء سے رسول سے پوچھ کے دیکھیں, جب میں آیا تھا پہلے ہی ہفتے میں ایک پوری خاندان نے رات 2 بجے ضیاء, رسول, میں اور وہ موجود تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں کلمہ پڑھا. میں نے انہیں کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گئے, آج تک مسلمان ہیں. کبھی کبھی مجھے وہ ٹیکسٹ بھیجتے ہیں سال کے جی میں کیا حال ہے آپ کا. تو ایسی بہت ساری فیملیوں نے اسلام قبول کیا جن کے دوسرے گواہ بھی موجود ہیں. ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ ان سے کبھی دوبارہ بات ہی بہت کم, کبھی مل جاتے ہیں میڈیا پر یا کہیں تو بات ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی قادیانی سمجھتا ہے کہ ہم جناب اس کے منتیں کریں کہ
मैं आपको एक असूल बता दूं, कादियानी के साथ मिन्नत से बात नहीं की जाती। ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कादियानी आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको रोक दें उसी जगह पर जहां पर वो बदजाती करने की कोशिश कर रहा है। वो जी ला तक़रबुस सलाता लोग कहते, कौन लोग कहते हैं? दुनिया में एक भी हवाला नहीं है कि किसी ने अपनी किताब में लिखा हो जी इस्लाम कहता है ला तक़रबुस सलाता, नमाज के नजदीक ना जाओ, सिवाय कादियानियों के। और कादियानी खुद भी इसको बैन ही जैसा वो कहते हैं किताब में लिखने से डरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जहालत होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। आकाश भाई अभी किसी को नहीं उठाना कॉल पे। जफर साहब आएं और कॉल आप पे, देखें मैंने उसको पहली बात कही कि मिर्जा कादियानी की तारीख पैदाइश बता दो। यार ये गलत। और शाह साहब ताड़ी हैप्पी बर्थडे कोई पूछो ते तुसी ओनू चित्तर मारोगे। डॉक्टर साहब मैं बता तुसी देता तो पूछोगे भाई क्या तोहफा लाए हो। यार ये है कादियानियत। सिर्फ मिर्जे की तारीख पैदाइश, चल तारीख ना दस, सन दस दे पैदाइश का पूछो तो कादियानी ऐसे भागता है जैसे वहां पर सांप काट गया, उसे सांप सूंघ गया। पहला सवाल किया है और आके ऐसे हमसे सवाल करते हैं जैसे उनके सवालों का जवाब देना हम पर फर्ज है। मेरे मुसलमान भाइयों, हम पर कोई फर्ज नहीं है कादियानियत के किसी सवाल का जवाब देना। कादियानियत एक ज़ंदीक़ियत और कुफर का नाम है। जियो हाँ नहीं, मैं सच बात कह रहा हूं, यही शरीयत का फतवा है। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं, अक्सर सुनाता रहता हूं। एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, वहां आप तशरीफ फरमा थे, तो आपने कहा कि कौन है जो, ये उस वाक्य के बाद है जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने 2 सफ़ीर भेजे और ख़त भेजा उनके हाथ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का दावा किया। और उन सफ़ीरों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सवाल किया कि तुम मुसलमा को क्या समझते हो? तो उन्होंने कहा जी हम वही समझते हैं जिसका मुसलमा दावा करता है। तो आपने इरशाद फरमाया, मतन बयान करता हूं, कि अगर सफ़ीर की जान लेना जायज़ होता तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उतार देता। ये जवाब था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे मिर्जाई आके मेरे मुंह तक कहते हैं मिर्जा नबी है। यार मेरे नबी की सुन्नत है कि मैं उस बदबख्त को जो नबी कहे उसको जूता मार के निकाल दूं अपने सामने से। आप क्या बात करते हैं? तो दूसरे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि इस्लाम में और कुरान में और सुन्नत में इर्तिदाद की सजा है और ज़ंदीक़ियत की सजा है, तो उसका एक हिस्सा यह है कि उसको वार्निंग दी जाती है कि रजू कर लो। यह फर्क है आम जराइम में और ज़ंदीक़ियत के जुर्म में। तो आपने कहा सहाबा से कि कौन है जो मेरा पैगाम लेकर जाएगा? तो हजरत हबीब रजी अल्लाह अन्हो खजूर खा रहे थे। उन्होंने खाते खाते मुंह खोला, खजूर मुंह से गिरने लगी। आपने कहा या रसूलुल्लाह मैं जाऊंगा। 10 बच्चे थे आपके छोटे छोटे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। तो सहाबा ने कहा ए हबीब रजी अल्लाह अन्हो खजूर तो खा लेते। तो आपने कहा कि हो सकता है खजूर खाते खाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम किसी और को दे देते। आप मुसलमा अल कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे और उसको पैगाम दिया कि रजू कर लो वरना तैयार हो जाओ। तो जवाब में मुसलमा अल कज़्ज़ाब ने कहा कि मुझे क्या समझते हो? तो हजरत हबीब रजी अल्लाह ने कहा झूठा कज़्ज़ाब ज़ंदीक। उसने दोबारा पूछा तो हर दफा जब वो पूछता था आपके जिस्म का एक हिस्सा तलवार से काट देता था। लेकिन इसके बाद मुसलमा के हर सवाल के जवाब में आपने कहा कुछ नहीं। और एक मौका पर तो उसने कहा तुम पीछे देखो, जवाब देने से पहले आप पीछे देख लें। और पीछे उसके सिपाही खड़े थे। मिर्ज़ाइयों को अगर पता नहीं, मिर्जा कादियानी तो एक भूखा नंगा फकीर और लानती किस्म की चीज था, भिखमंगा था। मुसलमा अल कज़्ज़ाब बहुत ताकतवर हुक्मरान था।
इसकी ताकत का इस बात से अंदाजा हो जाता है कि जब जंग यमामा हुई इसके इर्तदाद की वजह से और ज़िंदीकियत की वजह से, तो 27,000 मरज़ई जैसे लोगों ने, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, इस ज़िंदगी के लिए जान दे दी। 1200 सहाबा, जिसमें 705 शामिल थे, शहीद हो गए, जबकि 21 गुज़वात में 259 सहाबा की शहादत हुई। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ज़िंदीकियत कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम में। तुम अपने किसी मजहब का नाम रख लो, उसको दीन कहना शुरू कर दो, इस्लाम पर तोहमते बांधनी खत्म कर दो, कुरान के गलत तर्जमे करने खत्म कर दो, हम तुम्हें पूछेंगे भी नहीं तुम हो कौन। बड़े लगे फिरते हैं ऐसे तुम जैसे, तुम तो खत्म होने के करीब हो, करोड़ों की तादाद हो। यार ये इतना झूठ बोलते हैं मरज़ई। मरज़इयों की टोटल तादाद दुनिया भर में 3 लाख से कम है। पाकिस्तान के सेंसस के मुताबिक 1998 में इनकी तादाद 1,82,000 थी। यह खुद मरज़इयों ने छापा हुआ। और 2020 या 22 में नादरा के मुताबिक 1,60,000 हैं, जिनमें से 1 लाख पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन नादरा का कार्ड रखते हैं अपने साथ। ये हालत है। इनकी औरतें बांझ हो गई हैं या इन्होंने बच्चे बनाने बंद कर दिए। बात ये नहीं है। बात यह है कि कादियानियत, लोग जूं जूं इसके बारे में जान जाते हैं, कादियानियत को छोड़ जाते हैं। और कादियानी आके जनाब ऐसे रोब से कहते, हाँ जी मेरे जो सवालों का, तुम्हारे कौन से सवाल है? जहालत के सवाल है। हमें देखें, अभी मैंने एक ही सवाल किया, सवाल तो मेरा बनता है ना। उसने कहा कि पेशवा को गाली देनी जायज है कि नहीं। मैंने कहा किसी दीन के पेशवा को गाली देनी जायज नहीं है, इस्लाम उसकी सजा मुकर्रर करता है। लेकिन दीन तो होना चाहिए ना। मरज़इयत तो दीन है ही नहीं है, ये तो ज़िंदगियत का नाम है। मेरा तो फैसला ही नहीं है, बड़ी बड़ी हुकूमतों का फैसला है ये। तो हाँ जी, अब आप बात करें। जी मारखोर साहब कौन है जी? मारखोर एक मिनट जी, मारखोर से बाद में चलते हैं। पहले एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब को जो है ना, आपने लफ्ज़ बोला मिर्ज़ा सौंदी में नीचे हंस रहा था, और जो संस्कृत के ये दोनों लफ्ज़ हैं, दसवंदी भी और सौंदी भी। दसवंदी वो है कि उनके यहाँ जो संस्कृत में उस वक़्त भेंट चढ़ाते थे बच्चे, जो बीमारी थी, बच्चे मर जाते थे, तो वो भेंट चढ़ाने वाले बच्चे को दसवंदी बोला करते थे। और दूसरा उसके बाद जो सौंदी का लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है सीन वाओ नून दाल है, ये ही सौंदी, और वो भी संस्कृत का लफ्ज़ है। और उसमें भी वो मिट्टी गो के गूंद के जिससे वो बनाते थे अपने जो है आप देवी देवता या इस तरह करके। तो ये ऐसे तो इसके नाम थे। साहब लगाए इसका, चला है ये पेशवा बनने और चला है ये करने। तो मैंने कहा ये आपको ज़रा थोड़ा समय मेरे पास नहीं, था। आपकी बात तो ठीक। देखें, वो कादियानी को वहम था कि जनाब मैं तो सुन लूंगा, जनाब ये क्या कुरान इसको पता है, ला तकराब, सन तक कुरान आंदा ही नहीं जिस तरह है। अल्लाह यार मैं 7वीं जनरेशन में हाफिजों की अपने खानदान में, 7 पुश्तों तक हाफिज मौजूद है मेरे खानदान में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। लो जी मुफ्ती साहब, आप जरा लेट हो गए आज। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मैं मसरूर हो रहा हूँ आपकी शीरीं गुफ्तगू से। और ना मुफ्ती साहब, वो एक खबीस आ गया था पहले वाला आती रहती। जफर साहब आज थोड़ा जा कल मुफ्ती साहब से हुई थी, उसकी बात बड़ी देर हुई थी बात। जफर साहब दोबारा आए थे। हाँ जी। अच्छा, ये मारखोर साहब कौन है जी? पहले मुझे कंफर्म कर लेना जी। जी मारखोर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं उनसे ज़फ़र साहब को ऊपर ले, अगर किसी को नीचे उतार के बात कर सकते हैं तो मैं ज़रा ज़फ़र साहब की बात करना चाह रहा हूँ कि जमात जो के हवाले से, मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये जो बातें कर रहे हैं, तो इनकी ज़रा जमात के अहदेदारान के मतलब मैं इनसे ज़रा बात करना चाहता हूँ। ज़रा ये जो आगे का आवा इनका यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, उसके मतलब ये क्या कहते हैं? नहीं।
अभी तो जी जफर साहब फुल एंड शू हो गए हैं। नहीं, नीचे बैठे हुए हैं, आप इनको ले, सैयद साहब को भी ज़रा चुप करवाएं, आप भी ज़रा इनको ले ज़रा ऊपर, मैं इनको बताता हूँ। अभी रिसेंटली जहाँ पे हॉलैंड में एक गुजरा है बच्चा, एक बच्ची ने अपना वाक़या बताया कि यहाँ का जो मुरब्बी है उसने अपनी बच्ची की शादी जो है अपने साले के साथ करवाई है जो पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची थी। अगर ये जफर साहब आके मुझे इधर जवाब दें और बताएं कि ये मैं मसीह मौत पर बात नहीं करता क्योंकि ख़ानदान के अंदर मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं आप इस चीज़ का जवाब दें आके मुझे कि ये जो जमात। मारहोर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप कादियानी हैं या मुसलमान हैं? आप इस शायद साहब आप इसको छोड़ें, मैं अभी पहली दफा आप नहीं, ये बात सबसे पहले होनी चाहिए कि मेरी ब्रॉड पे मुझे पता होना चाहिए कि बंदे की डेफिनेशन। मेरा बिल्कुल ताल्लुक था, लेकिन अभी जो चीज़ें मामला हुए हैं मेरे, इनके साथ बड़े मसाइल चल रहे हैं, चीज़ें चल रही है। तो हाँ जी, तो लेकिन क्या अभी आप अभी स्टिल कादियानी हैं या मुसलमान हो चुके हैं? जी नहीं, उस पर मैं नहीं जाता, मैं इन लोगों की जो हकीकत है वो चीज़ों पर यहाँ पे बात करने के लिए आया कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं, आके मुझे जवाब दें कि क्या ये ओहदेदारान इन चीज़ों के ऊपर बैठ के अपनी सियासतें नहीं कर रहे। और बात ये होती है कि आप चलो आपकी गुफ्तगू से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि आप पहले कादियानी थे, लेकिन मौजूदा आपका स्टेटस क्या है वो शाहिद भाई पूछ रहे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे कादियानियत तो लोग छोड़ देते हैं, कादियानियत को तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अभी ये छोड़ दें सवाल तो वो ना फिर शाहिद भाई और मॉडरेटर, ये मेरा ख्याल है ये सवाल छोड़ दें आप अभी। या मुल्हिद हो जाते हैं या क्रिश्चियन हो जाते हैं या सिख बन जाते हैं, तो इस तरीके से वो शाहिद भाई इस वजह से पूछ रहे हैं कि आपका मौजूदा स्टेटस क्या है। कम से कम एक हमारे पास बंदा मौजूद है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो हमें पता होना कि भाई हम जिससे बात कर रहे हैं वो बंदा खुद क्या है। जी मुफ्ती साहब, मैं मुसलमान ही हूँ, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी शरी नबी ही मानता हूँ। मामला जो है वो दूसरे हैं, मैं मसीह मौद आखिरी शरी नबी ये कोई नई इस्तिलाह मैंने आई जिंदगी में पहली दफा सुनी है। नहीं, आप बात को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, वो आप उस तरफ जा रहे हैं, मैं इनको लेके आना चाह रहा हूँ इस तरफ कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम लोग मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं, मुझे आके यहाँ पे जवाब दें कि जो मोहब्बत आप लोग के लोग कर रहे हैं यहाँ पे ओहदेदारान कर रहे हैं, वो ज़रा आके बताएं ना सबके सामने। जी बहुत अच्छा, आपकी बात करवाते हैं उनसे अगर वो करना चाहेंगे। तो पहले तो ये ना माजरत के साथ देखें, मैं एक आलिम दीन हूँ और एक आलिम दीन का ये फरीज़ा होता है कि जहाँ पर कोई इस्लाम के मुखालफ कोई चीज़ देखे तो उसके ऊपर मुखातब को तंबीह करे। तो ये पहली दफ़ा ये लफ्ज़ आपसे सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी शरी नबी मानता हूँ। जबकि कादियानी अकीदा तो यही है, कादियानी भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरी नबी हैं। नहीं मौलवी साहब, यहाँ पे बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। शरी नबी से मुराद क्या है? कि शरीयत लाने वाले नबी, आखिरी नबी। हम मैं या आप जो है आप को क्या मानते हैं? नहीं, हम तो बाहर इतबार आखिरी मानते हैं ना जी। नहीं, शरीयो गैर शरीयो जी नहीं, उनके जरिए मैं उस तरफ, मैं कोई जमात की उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हजूर ऊपर सैयद साहब भी बैठे हैं, उनके पास काफ़ी नॉलेज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जरिए हम तक इस्लाम पहुँचा जी। जितने भी यहाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जितने भी हम लोग बैठे हैं ये तमाम मुसलमान हैं। इनके वो कादियानी, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक इस्लाम पहुंचा है वो शरीयत ही है ना। नहीं, ये कैद नहीं लगाएंगे हम ना, आखिरी शरी नबी नहीं, बस आखिरी नबी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं बहर इतबार। वो चाहे नबूवत की जो कादियानी किस्में करते हैं, जिली नबी, बरोजी नबी, हकीकी नबी, गैर हकीकी नबी, शरी नबी, गैर शरी नबी, ठीक है जी। तो वो जितनी भी किस्में कर लें, उन सब किस्मों के आखिरी नबी मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मुफ्ती साहब अगर बुरा न मनाए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। देखें, अगर ये मारखोर साहब जो है ना वो ट्रांजिशन में है ना,
थोड़ा सा काइंडली इनको टाइम दें, क्योंकि देखिए ये मुझे भी इसमें थोड़ा सा वक्त लगा था। मैं 2012 से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो है वो नबी नहीं है, लेकिन मैं 2018 तक जो है मिर्ज़ा को मसीह मऊद कहा करता था, ठीक है। तो ये थोड़े से डाउट्स में टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं। मार्को साहब, असल में मैंने आपको फॉलो कर रहा हूँ कादियानी को, वो तो हम भी मसीह मऊद मानते हैं, मुसलमान भी मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद ही मान रहे हैं, यानी ऐसा मसीह के जिसके आने का वादा किया गया है। तो शरीयत के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मसीहों के आने का वादा किया है। एक है मसीह इब्ने मरियम, तो मिर्ज़ा कादियानी मसीह इब्ने मरियम तो है नहीं, ना उसका नाम ईसा है, ना ही उसकी माँ का नाम मरियम है, ना ही उसके अंदर वो अलामतें हैं, तो मसीह इब्ने मरियम तो है नहीं, तो वो वाला मसीह तो हो नहीं सकता मसीह मऊद। हाँ, एक दूसरा मसीह मऊद जरूर है, उसके भी आने का वादा है, जिसको कहा गया अल मसीहुद दज्जाल। तो हाँ, हम मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं, लेकिन मसीह मऊद दज्जाल मानते हैं। जी आगे बात करें। जी मुफ्ती साहब, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा आपके साथ। चले इसको इस बहस को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मार्फत साहब, आप इस ब्रॉड पे आया करें, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा और अवेयर कर, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, ठीक है। बाकी आपने जफ़र साहब से बात करनी है, तो मैं जफ़र साहब को पिछले 10 दफ़ा जो कॉलें डाल चुका हूँ, तो जफ़र साहब आ जाएं। अगर हमारी बात बुरी लगी है तो आपकी घर से ही अब बातें उठने लगी हैं। जफ़र साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको पता क्यों प्रेफर करता हूं दूसरे कादियानियों से, क्योंकि आप हैं अपने घर के हेड, ठीक है। और जब एक हेड को अल्लाह ताला हिदायत देते हैं तो पीछे सबको आ जाती है, ठीक है। अगर आपके बेटे को आएगी तो वो आप उसको कहलाएंगे ये मुर्तद हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसलिए प्रेफर करता हूँ आपके साथ गुफ्तगू हो, ताकि अल्लाह ताला के फजल से थोड़ी सी आपको हिदायत आ जाए, या नीचे बैठ के फिर सुना करें हमारी बातें, ठीक है। अगर आ जाएंगे तो बेटर होगा, आपके जो सवाल आता है, ठीक है। देखिए जी शाहिद भाई, अगर इनको हिदायत आ गई ना तो इनको घर से निकाला मिल जाएगा। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका ऊपर लेने के लिए। नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ अच्छा, ऐसे करते हैं, ये मारखोर भाई को 2 मिनट दे दे, ताकि वो जो बात बताना चाह रहे हैं वो भी हमारे आपके दिल में है। आपको ना मैंने फॉलो कर लिया है, काइंडली आप मुझे फॉलो कर लें, ताकि जो है ना, अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा कि आपको नहीं मैं अभी तफसील में नहीं जाना, मैं अभी तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर तफसील में गया तो मेरी तारीख जो है वो बड़ी पुरानी निकलेगी। मैं सिर्फ मेरी तारीख जो है वो 313 के अंदर जाके निकलेगी, इसलिए मुझे उधर ना छेड़ें। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मसाइल हैं, ये फिर बातें करते हैं जी इनफरादी कमज़ोरियाँ हैं। जी फौज के अंदर इनफरादी कमज़ोरियाँ हैं। आपके मुरब्बियान जो हैं वो बीच के अंदर, काजी आपके अंदर बीच के अंदर घुस के लोगों के मसाइल जो है हल कराने के बजाय मसाइल मज़ीद बढ़ाते हैं, वो बदजनियाँ डालते हैं, लोग बागी होते हैं। ये तो आप लोगों के काम है। और अगर आपको चीज़ें चाहिए, मेरे साथ आए, मैसेज पे आए, मुझे रब्ता करें। अच्छा मारखोर भाई, जरा थोड़ी सी मालूमात लेनी है आपसे। मौजूदा अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को आप क्या समझते हैं? मुफ्ती साहब, आप फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं उन किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, किसी के खिलाफ बदतमीजी नहीं भाई। देखें, हम मुस्लिम है, देखें आप इग्नोर कर रहे हैं जिस चीज को, उसको हम इग्नोर नहीं ना कर सकते मेरे भाई। देखें, एक मिनट सुन लें माजरत के साथ। देखें, यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं कि जो के एक है, वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कादियानियत का लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ उनका ये है कि भाई कादियानी किसी तरीके से जलील हो। अब कुछ ऐसे लोग हैं कादियानी, लेकिन उन्होंने कुछ और का लिबादा ओढ़ लिया है, वो दीगर मज़ाहब को जलील करें। तो ये है, यहाँ पे बड़े रोले हैं भाई, बड़े रोले हैं। आप देखिए, हम मुसलमान हैं, हम मिर्ज़ा कादियानी को जो कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते हैं, और हर मुसलमान जिससे भी पूछेंगे वो आपको बताएगा।
भाई अगर तो आप वाकई मुस्लिम हैं या मतलब आप मिर्जे को छोड़ चुके हैं तो आप अपने कीदा बता दें कि भाई ये बस इसमें कोई कौन सी, हम आपको ये नहीं कह रहे आप गाली दें, बस आप ये तो कम से कम कह सकते हैं ना वो भाई दज्जाल है और कज़्ज़ाब है, बस इतनी बात खत्म होती है। नहीं मुफ्ती साहब ये अभी अहमदी हैं, मैं अच्छा अहमदी, बस ये बात क्लियर हो गई ना, ये तरीका कार है ना, हमें भी तो कम से कम पता चले कि भाई मैं आज पहली दफा इनको सुन रहा हूँ तो हमें पता तो चले ना कि भाई ये कौन है। बस चलो ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। मारखोर साहब बड़ी मेहरबानी। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। आप जिस तरफ मुझे लाना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। हम लोग किसी गैर की भी तौहीन नहीं करते, मैं नहीं करता किसी की, लेकिन जो बुनियादी जो मेन मसाइल हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर है कि देखिए मारखोर साहब, मेन प्रॉब्लम्स खलीफों के अंदर नहीं है। मेन प्रॉब्लम आज खलीफे जानी है, शराबी है, रंडीबाज है, तो मेन प्रॉब्लम इनमें तो ना हुई। ये मेन प्रॉब्लम चली है मिर्जे कादियानी से। शराबें वो पीता था जिसने सिखाया है शराबें पीना, कैसे शराबें पीनी है। जना करके उसने पहले दिखाए हैं कैसे जनाकारियां करनी है। तो आज खलीफों के अंदर जनाब वो नुक्स निकाले जा रहे हैं। कोई बशीरुद्दीन महमूद का दुश्मन हो गया है तो कोई मिर्जा मसरूर का दुश्मन हो गया है। नहीं, ये बात नहीं है। असल जड़ को पकड़ना है हमने, जड़ जो है ना वो काम खराब है। मिर्जा कादियानी क्या आप क्या समझते हैं कि भाई जो आप एतराज़ात कर रहे हैं आज के मुरब्बियों के ऊपर, या आज की जो इंतज़ामिया है कादियानियों की, मसरूर ग्रुप की, उसके ऊपर जो इतराज़ात करेंगे, या मिर्जा मसरूर के ऊपर कोई इतराज़ करेंगे, तो क्या वो काम मिर्जा कादियानी नहीं करता था? वो सारे काम तो मिर्जा करता रहे। तो क्या मतलब क्या निकला कि जो इतराज आप उठा रहे हैं वो इतराज डायरेक्ट जाता है मिर्जा कादियानी के ऊपर। जी थोड़ा सा उनको मारहोर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें प्लीज, लेट हिम टॉक। जी वो अब मुफ्ती साहब बीच में आके बात कर देते हैं। जो मैं पॉइंट करना चाह रहा था वो फिर ज़हन से निकल जाता है। कहने का मकसद मेरा यही है कि अगर इनमें से कोई बंदा भी है, मैंने इनको आपको वाज़ेह तौर पे ब्रॉड पे कह दिया है कि मेरी तारीख जो है 313 जो ये कहते हैं उधर तक जा रही है। मैंने आपको सिर्फ क्लियर बता दिया है। मजीद मैं डीपली नहीं जाना चाह रहा। और ख़ानदान जो है मेरा वो शायद ही इस पूरे जितनी भी जमात है उसके अंदर इतना बड़ा ख़ानदान होगा। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। मैं सिर्फ दो बात कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे देखा है, मुझे 12 साल हो गए यूरोप में, जो मैंने देखा है, जिस जगह पे बैठ के मैंने देखा है, पूरे का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है। सियासत जो है वो पूरी दबा के की जाती है। जो बंदा, मुझे सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो चीज़ें जो ये कह रहे हैं मोहब्बत साहब के लिए, नफरत किसी से नहीं, उसकी आड़ के अंदर जो साइड भारी है, ये कुरान भी साइड पर रख देते हैं, हदीस भी साइड पर रख देते हैं। उस बंदे को, बाप को अपने सर की टोपी पे बिठा के ये बातें उसके फ़ायदे के जो चीज़ें करते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। अगर ये लोग इतने सच्चे हैं तो मेरे पास आके बैठ जाए स्टेट फॉरवर्ड और मुझे आके कहें कि जी ये बातें गलत हैं, मैं गलत बातें कर रहा हूँ। मैं आपको साबित करूँगा मेरे साथ जो इन्होंने चीज़ की है, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। और वो सारे सबूत जो हैं वो इंग्लैंड तक पहुँचे हुए हैं, और इंग्लैंड से हो के वो वापस इनके पास आते हैं। और जो वापस आए हैं और जिनके पास आए हैं, जब वही बगैरत बैठे हुए हैं अंदर और वो चीज़ें गलत कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं मोहब्बत साहब के लिए नफरत किसी से नहीं, हम ये चीज़ें जो हैं वो नहीं करते, ये नहीं करते। मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को सबूत दिखाता हूँ। मैसेज करो, एड्रेस देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ, मेरे पास आओ, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये बात आपने सही की है कि ये जो नारा लगाते हैं जी मुफ्ती साहब एक सेकंड, मुफ्ती साहब एक सेकंड। मारखोर साहब मेरी नीचे आईडी में अभी हाई लिखने लगा हूँ। मारखोर साहब ये मेरी नीचे आईडी दूसरी है, हाई अभी मैंने लिखा है, आप इसको फॉलो कर लें, ठीक है? तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे जो है ना कांटेक्ट करूँगा, ठीक है? तो मैं कुछ प्राइवेट में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मोहब्बत सब के लिए, लव फॉर ऑल, हेटेड नॉन फन, नॉन हेटेड फॉर नॉन के नारे जो लगाते हैं, तो गुजारिश ये है कि ये अब देखें, थोड़ा सा मैं आपको आईना दिखाता हूँ कि मिर्जा कादियानी को हम देखते हैं, वो अपने मुखातब को क्या कहता है, रूहानी खजाइन जिल्द 9 है सफ़ा 31 के ऊपर कहता है, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं।
اب یہ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نعرے نہیں لگاتا تھا محبت سب کے لیے بھائی، نفرت کسی سے نہیں؟ وہ تو ہر ایک کو حرامی حرامی کہہ کے وہ پکار رہے. کیا تبلیغ ایسے ہوتی ہے؟ کسی کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کہا جا تو ولد الحرام ہے، تینوں حرام زیادہ بنن دا شوق ہے، میرے اوپر تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ لے کے آ، تو میری فتح کا قائل کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہے تبلیغ. روحانی خزین جلد 14 صفحہ 53 کے اوپر وہ کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں مفتی کچھ صاحب ذرا رکیے گا پلیز، اس سے بات کرنے دیجیے پلیز، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ. جی مارہور صاحب. جی بہت شکریہ شاہد بھائی. مفتی صاحب ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں، وہ اپنی جگہ غصہ نہیں نکال رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا لا فار آل ہیٹنگ فار ابھی یہ نن. حوالوں کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پلیز حوصلہ کریں. شاہد صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس پر ذرا تھوڑا غور کریں. مارہور صاحب میں نے نیچے آئی ڈی لیکن عمران خان بھائی آپ جب ٹائم ملے آپ یہ بھی بتانا کہ یہ جو ندا نصر کا کیس ہوا تھا ٹوٹل، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا کیونکہ مرزائی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، لیکن اس کی فرینزک کرائی جو گئی ہے تو ہر چیز سچی ہے. کیا وہ بچی جو ہے جو ایک مرزا کی ایک خلیفہ کی دھوتی اور ایک خلیفہ کی وہ پوتی تھی، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے وہ بتائیں پلیز. میں نے اچھا مارکھور صاحب پہلے سب سے یہ جو میں نیچے ہائی لکھا ہے اس آئی ڈی کو فالو کریں. میں آپ کو اپنا واٹس ایپ کا نمبر سینڈ کرتا ہوں. میں بھی انگلینڈ میں ہوتا ہوں، تو جو باتیں آپ سوشل میڈیا پہ نہیں کرنا چاہتے میں جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں پرسنلی میں پلیز. تو ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، مجھے فالو بیک دیجیے گا تو میں آپ کو اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھیج دوں. یہ جو آپ کا اوپر سے پلس کا نام آ رہا ہے اس پہ تو فالو یہ نیچے میں نے ابھی جو ہائی لکھا ہے نا، ہم حق کی بات کرتے ہیں، ابھی میں پھر بھیج دیتا ہوں. نیچے آئی ڈی آئے گی ابھی. میں نے کر دی. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد پھر میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا. جو باتیں میں یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاید آپ سوشل میڈیا پہ نہیں بتا سکتے تو وی کین اسپیک. ابھی سر جو دوسرے بھائی بات کر رہے تھے کہ ندا کے حوالے سے میں نے بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میں نہایت اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے الفاظوں کو جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ میں نے بھی سنی ہے. لیکن اگر وہ سچ ہے اور وہ جتنا اس نے جو چیزیں کی ہیں جیسی آگے سے اس کو رپلائی دیا گیا یا جو جواب بات کی گئی ہے وہ نہایت نامناسب ہے میرے نزدیک. اور میں اس چیز کو ایگری نہیں کر سکتا، اس کے مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک فیملی ممبر ہوتے ہوئے ایسی چیز جو ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر اس کو دیکھوں اور برداشت کروں. صحیح ہے. میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں نے 1000 پاؤنڈ کا جو ہے وہ انعام رکھا تھا کہ اگر مرزا مسرور اور ندا کی کانورسیشن جو ہے اس کو کوئی جھٹلا سکے تو میں اس کو 1000 پاؤنڈ دوں گا، ٹھیک ہے. اور واقعہ ہی میں وہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ ندا نصر نے ریکارڈ کر کے تو وہ ریکارڈ بھیجا ہوا ہے. آصف بھائی ادھر بیٹھے ہوئے زیتون چینل کے، یہ بھی تھوڑے سے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو. تو باقی یہ چیزیں 110% جو ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ مرزا مسرور نے ندا کو جو $2 ملین دیا ہے، پاؤنڈ دیا ہے، ٹھیک ہے. ندا نظر بچی تو نہیں تھی نا پاکستان میں. شاید بھائی تھوڑا سا مہربانی اگر آپ ہمیں موقع دیں ہم بھی تھوڑی سی استفادہ کر لیں ان کے علم سے، اگر اجازت ہے تو میں کوئی استفادہ کر لوں. بولے پلیز تھوڑا سا ان کو جو نا جی بولیں. اچھا بات یہ ہے کہ چلو ندا نصر نے جو کیا، مسرور نے جو کیا وہ تو چلو، میں کہہ رہا ہوں مرزا قادیانی جو کرتا رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی تو کچھ کیا جائے نا بھائی. یہ کون سی بات ہے بھائی کہ مطلب پتوں کو جھاڑا جائے، جڑ ادھر کی ادھر موجود ہے، وہ پھر بھائی پتے ابھر جائیں گے. میں جاننا چاہ رہا ہوں مارخور بھائی سے کہ محترم میرے پیارے، آپ مرزا قادیانی کے بارے کیا کہے؟ وہ خود زانی تھا، مرزا قادیانی زنا کرتا تھا. حوالے چاہیے ہوں گے تو بتا دیجئے گا، کیونکہ آپ نے کتابیں تو پڑھی نہیں ہوں گی، کتابیں تو ممنوع ہیں آپ لوگوں کے، ہاں آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اگر حوالے چاہیے تو مجھے بتائیے گا، حوالے میں دے دوں گا. بات یہ ہے کہ اصل جڑ کو پہنچنا ہے ہم نے. یہ تو آج کے 100-150 سال کے بعد کے یہ نمونے پیدا ہو رہے ہیں، زانی، شرابی، چور چکے. ان کو چھوڑیں، جو ان چور چکوں کا سردار تھا ہم تو بات اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو کیا کریں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟
मैं मुफ्ती साहब मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, मैं अब जो मुरब्बी आप कह लें उनको, मैं आपको गिनती नहीं करवा सकता कितने बंदे हैं मेरे भी। मैं आपको अपनी मैं जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें देखी है, मैं उसके बात कर रहा हूँ कि सियासत जो है इसके अंदर खलीफा वक़्त तक जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ चीज़ हुई है और मैंने A to Z इन्फॉर्म आगे तक किया है, और मुझे जो उसका रिप्लाई वापस मिला है, मैं वो सारे का सारा उसका आपको कंक्लूजन करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि सियासत जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक है। फिर आप इस दौर की बात कर रहे हैं। सियासत जो है आप मोहतरम, सियासत की बात आज की सियासत की बात नहीं, मुफ्ती साहब अगर 150 साल पुरानी सियासत की हम बात कर रहे हैं। आप अगर मुझसे ये चाहते हैं कि मैं उनको गालियां निकालूं या मैं कब कह रहा हूं, मैंने एक दफा कहा हो कि आप गालियां निकाल लें? जी जी मैं कब कह रहा हूं मोहतरम, आप या तो हमारी बात समझ नहीं रहे और या मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैंने पहले भी वजाहत सारी दे दी, अपने हवाले से, अपनी तारीख के हवाले से आपको बता दिया हुआ। मैं सिर्फ ये पॉइंट कर रहा हूँ कि मैं अभी जो सियासी चीजें चले एक काम करते चले छोड़े मैं आपके सामने एक चीज पेश करता हूँ, आप बताइएगा कि आया ये सच है कि झूठ है। ठीक है भाई, मंजूर करते हैं आप? जी करें, जी पूछे बात। हाँ, ये तरीका ठीक रहेगा। अगर तो मेरे इल्म में हुई तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, ये बेहतरीन तरीका रहेगा कि हम सवालन जवाबन आपसे कुछ थोड़ा बहुत, चलो भाई मुझ समेत और बहुत से दोस्त हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ उनको मालूमात चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मिर्जा कादियानी को जो अभी आप कह रहे थे कि मसीह मऊद, मिर्जा कादियानी कहता है मैं मसीह मऊद इस तरीके से बनाऊं कि 2 साल तक मैं औरत बना रहा मरियम, फिर मुझे 10 महीने का हमल ठहर गया, मेरे अंदर ईसा पल रहा था, जब उस ईसा की पैदाइश हुई तो वो जंप लगा के मेरे अंदर वापस आ गया, तो वो जनाब इस तौर पे मैं मसीह मऊद बना, मसीह इब्ने मरियम बना। तो मसीह इब्ने मरियम को ही मसीह मऊद कहते हैं ना आप लोग। अच्छा ये बताएं, क्या ये बात ठीक है? आप क्या समझते हैं, ये ठीक है ये बात, या कोई इसके अंदर कोई गड़बड़ है? जी मुझे इस किताब का रेफरेंस अभी याद नहीं है, लेकिन ये मैंने ये जो लाइन्स हैं जो आपने पढ़ी हैं वो उसको मैंने पढ़ा है, लेकिन वो किसी और तरीके से चीज़ें लिखी हाँ, हैं। चले कोई नहीं, मैं हवाला पूरे ही पढ़ देता हूँ। जी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है किसी और तरीके के साथ, वो आप जिस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ठीक है, मैं आपके ऊपर इतराज़ नहीं कर रहा, किसी पे नहीं कर रहा। मेरा एक तरीका है, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ, किसी से बदतमीजी नहीं करता, ना किसी के खिलाफ करता हूँ। नहीं, हवाला नहीं पूछेंगे हैं, मैं जो चीज़ें मेरे सामने जो चीज़ें हुई हैं मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई जफर साहब हो गई या और कोई अब्दी मैन की एक और ब्राड पे भी गया था, वहाँ पे मैंने जब आप हवाला नहीं पूछेंगे मुझसे? मुझे पता है, वो मैंने पढ़ा हुआ है। आप अगर देना चाहते हैं दे दें, आप देना चाहते हैं दे दें। जी अच्छा, पढ़ा हुआ है। मुफ्ती साहब मैं एक बात अर्ज करूँ, इजाजत हो तो? बिल्कुल, आप, मैं सोच रहा था कि आप कब बोलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ना, मैं आपकी मौजूदगी में नहीं बोलता, लेकिन मैं एक आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मारखोर साहब जो है ना, वो आम कादियानियों की तरह नहीं है। आम कादियानियों को मैंने बहुत करीब से देखा है। इनके बारे में जो आसिफ साहब ने बात कही थी ना, वो ठीक थी कि ये अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि आप जो इन्हें हक़ाइक़ बता रहे हैं ना, तो वो इन्हें कंफ्यूज कर देंगे। तो मेरा ख्याल आपसे अर्ज है, बस आप तो जानते ही हैं मुफ्ती साहब कि हम तो आपकी हर बात का, हाँ, तो इनकी बातों का आप जवाब दे दें। और ये मुफ्ती साहब थले किए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब आप बोलिए। मुफ्ती साहब कहाँ गए? नहीं, शायद साहब मुफ्ती साहब को बुलाएं ना। मैं डॉक्टर साहब इधर दूसरे फोन पे लगा हूँ। हाँ, मुफ्ती साहब को फोन करें। मुफ्ती साहब को तो हमने आ गए सर, आ गए। हाँ, नहीं क्या हुआ था मुफ्ती, हाँ नहीं मुफ्ती साहब, असी तो हम तो घबरा गए, हमारी क्या मजाल है कि आपको कुछ कहें। नहीं, लेकिन
नहीं, हम तो, मैं तो बस इसलिए अर्ज कर रहा था क्योंकि आपकी तरह आप तो हमसे बहुत तजर्बाकार हैं। पता है क्या होता है, होता ये है कि डॉक्टर साहब आपके तो इल्म में ही है कि कुछ अरसे बाद ना रोले बाद में सामने आते हैं। वो मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना मुनासिब नहीं। सारी दुनिया ने देखा कि बंदा खुद कह रहा है वो कि मैं मुल्हिद हो गया हूँ, मैं मुल्हिद हूँ। हाँ जी, तो बात ये है, सवाल यहाँ पर ये है, ये रोले बाद में निकलते हैं। वो बंदा कहते तो सारे यही हैं जी, हम एक्स कादियानी हैं, लेकिन मौजूदा उसका स्टेटस क्या हमें नहीं पता। वो तो से पता चलता है, वो मामला से पता चलता है भाई तूने कादियानियत को तो छोड़ दिया है, लेकिन मौजूदा तू क्या है वो तो बता, कम से कम वो नहीं बताते। मुफ्ती साहब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, जो है ना इन कादियानियों की, जो कादियानियत से निकल रहे हैं आजकल, तो वो इल्हादियत को ज्वाइन कर रहे हैं या मतलब दीगर मज़ाहब का रुख किया हुआ है। जी डॉक्टर। हाँ, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, ये जो है मारकोट साहब उस स्टेज में हैं जहां उन्हें कादियानियत के गलत होने का यकीन भी नहीं है और उनके, लेकिन इस बात का भी यकीन नहीं है कि कादियानियत ठीक है। और मैंने बहुत सारे कादियानियों को, आपने तो मुझसे ज्यादा देखा होगा, इस स्टेज में देखा है। डॉक्टर साहब फील कर, हाँ जी, यही बस इतनी अर्ज करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। वो उनको ना कुछ भी पता नहीं है कादियानियत का, मिर्जे कादियानी, हाँ, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, नजरियात का पता ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है अभी। वो मैं बता देता हूँ कि जो इनका जालिमाना निजाम आजकल राइज है मिर्जा मसरूर का, तो उससे ये खफा हो गए हैं, बस ये असल में मसला हो। हाँ बस इतनी सी बात है, बस माशाल्लाह। मुफ्ती साहब मैंने तो बड़ी हिम्मत निकाल के आपसे अर्ज की है। नहीं मतलब आप मेरे हम मजाज, नहीं, हम तो आप हम सबको मतलब सब बताते हैं। तो मैंने बस ये जो आसिफ भाई कह रहे थे ना, वो तो कादियानी थे, उन्होंने आपसे ठीक बात में डॉक्टर साहब ये भी होती है ना हिकमत कि मुझे और आपको तो पता चल गया, तो सुनने देखने वालों को, जो साइलेंट लिसनर हैं, उन तक हमने एक खबर पहुंचानी है कि बात असल क्या है। तो ये भी एक हिकमत होती है ना पेश। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मारखोर साहब को तकलीफ देगी वो बात। हाँ मारखोर साहब माजरा चाहता हूँ अगर कोई तकलीफ हुई हो तो। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब से साहब, आप दोनों ने अच्छे तरीके से जो बात करनी थी एक्सप्लेन कर दी है। मैं अपने पॉइंट पे वहीं पे हूँ और इस ब्रॉड के ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ सबको, जितने भी एमडी हैं या कादियानी हैं, आ जाए मेरे पास, बात कर लें, मैं चीज़ें साबित कर देता हूँ। और अपनी ब्रॉड पे, मैं इनकी ब्रॉड पे भी गया था और वहाँ पे जाके मैंने बात भी की थी, और फिर आगे से ये इनके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जी आपको डस लग गई। ये इन लोगों की असल में हकीकत है कि ये मोहब्बत सब के लिए और नफ़रत किसी से नहीं, ये किस तरीके से बात करते हैं। इन लोगों को असल जो मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं, इसके मैनी का पता ही नहीं है। तो हाँ जी, मारहर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आपको आपकी आईडी पे ना नंबर छोड़ा है, ठीक है? तो प्लीज़ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास टाइम हो, आप यूके में होते हैं ना? नहीं, मैं यूरोप में हूँ। यूरोप में हूँ, चले उसके आगे 0044 मैं दोबारा नंबर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो प्लीज़ कांटेक्ट विद मी, आई वांट टू टॉक। मुझे बेशक आप उतार दें, बहुत शुक्रिया लेने के लिए। मैं जफ़र साहब, आप एक ऐसी पहली दफ़ा आपकी ब्रॉड पे आया, बैठा था तो वो हवाले मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी किसी को इस तरह नंबर नहीं दिया, ठीक है? और पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि हम सोशल मीडिया पे नहीं करते जी। और इसीलिए उन्होंने मसीह मौत की बात कर रहे थे और चीज़ें कर रहे थे। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये था कि नीचे जो निज़ाम चल रहा है और जो सियासत चल रही है और जो सियासतें हो रही हैं, आके मुझे सामने जवाब दें, सबके सामने पूरी दुनिया सुने कि जी ये नहीं हो रही या हो रही हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जब आप अगर मुझसे बात करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके नॉलेज में भी नहीं होगी शायद, ठीक है? मेरे पास शायद साहब, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, मैंने कसरत खिलाफत, मैं आपको इतना बता दूं, मैंने कसरत खिलाफत के अंदर बंदे निकाल देने अपने, आप उस तरफ ना जाएं, आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं जब आप मुझसे बात करेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप यकीन मान, ठीक है?
کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا اندر کھاتے انشاءاللہ تعالی بہت بہت بڑی بڑی بریکنگ نیوز ہے میرے پاس پڑی ہوئی جو میں سوشل میڈیا پہ ابھی نہیں کرنا چاہتا، یا وہ کچھ وقت مجھے چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ سیاست اور یہ جو کلٹ جو سسٹم انہوں نے نظام بنا کے یہ جو دھوکے دے رہے ہیں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، بچی کا مجھے جب پتہ چلا، میں نے اس کی خبر سنی ہے، وہ پاگل ہوئی ہے. مربی نے کس حد تک جا کے اس کے ساتھ زیادتی کرائی ہے. اگر یہ میری بات سن رہے ہیں، یہ بات آپ بتا ہی دیں نا اپنا مارخور بھائی، ہمارے نالج کے لیے بتا دیں، کیونکہ ہمارا بھی تو سارا دن ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. دیکھو نا، ایک باپ جس طرح مرزا لقمان ہے جو ناصر کا بیٹا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ 37 سال زنا کیا اور کثر خلافت میں کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے تھوڑا سا. جیسے سید صاحب نے بات کی تھی کہ میں ایک پرسن ہوں، اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے. نام لیے بغیر بتا دیں، کوئی بات نہیں. ہاں، میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیا ہے کہ مجھے جب یہ ریسنٹلی ابھی رپورٹ ملی ہے بچی کی، جو میرے ساتھ جو چیزیں انہوں نے کی ہے وہ کی ہیں، لیکن جب میں نے بچی کے حوالے سے بھی سنا ہے، وہ بچی کی حالت پاگلوں جیسی ہے. میں اس براڈ کے اوپر آ کے، اگر یہ ان لوگوں میں سے کوئی نیچے بیٹھے سن رہے ہیں، مجھے میسج کریں. میں آپ لوگوں کی اوقات دکھاتا ہوں کہ آپ کے مربیان کیا کر رہے ہیں، آپ کے امور عامہ کا بندہ کیا کر رہا ہے، آپ کے جنرل سیکرٹری کیا کر رہے ہیں. میرے ساتھ آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس کتنا نالج ہے اور میں کیا چیز ہے. مجھے ثابت کریں کہ میں غلط ہوں. اس براڈ پہ آ کے میں کہہ کے جا رہا ہوں، جتنے بھی سن رہے ہیں وہ پیغام پہنچا دیں، انگلینڈ پہنچا دیں، یورپ پہنچا دیں، جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیں، اور ان کو کہیں کہ یہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرو، یہ پوچھو یہ کون ہے، یہ کون سا احمدی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کو کیا کیا چیزوں کا پتہ ہے. میسج کر کے آئیں میرے پاس، ان کو میں بتاتا ہوں پھر حقیقت کیا اور حقیقت. یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ان ملکوں کے اندر لیٹر سسٹم سیکھ لیا ہے کہ کسی کے خلاف رپورٹ کیسے کرنی ہے، وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے. اور انہوں نے یہ نہیں چیزیں سیکھی کہ محبت صاحب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، اس کے اصل معنی کیا ہے. یہ پوری کا پورا سسٹم سیاست پہ چل رہا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک. اور حضرت صاحب کو میں اسی لیے اس چیز کے اندر شامل کروں گا کہ ان کی رپورٹس کے متعلق حضرت صاحب خود اپنے خطبات میں، پروگرامز میں نے آپ کو دن کو سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک پروگرام لجنہ کا چل رہا تھا جس میں حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ عورتوں کے حوالے سے، میں سن رہا تھا. اصل میں وہ پروگرام کینیڈا کا تھا میرا خیال ہے، جس میں لجنہ بیٹھی ہوئی تھی. جی وہ کینیڈا کا پروگرام تھا اور اس میں ایک مربی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو حضور اس کی مطلب خلیفہ کی زیارت کرانے کے لیے بچیوں کے ساتھ وہ جو زیادتی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آڈیو ہے میرے پاس، کہ وہ ان کو صرف ان کے دیدار کے لیے جو ہے جو ان کے ساتھ طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ ویری ان اپروپریٹ. میں ایسے بس بتا دوں سمپل سے ورڈ میں. آپ سمجھ گئے میری بات بھائی مارکو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے بہت ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے ساری چیزیں. انہوں نے کہا، میں انہی کے الفاظ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے نا کہ جو عہدیدار کام ٹھیک نہیں کرتا مجھے رپورٹ کرے. وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. 10 لاکھ رپورٹیں ہوئی ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں نے خود کی ہے. ان کے خلاف رپورٹیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیے گئے. تو اس کے تو پھر یہ میں صاف کہہ رہا ہوں اس کے براڈ کے اوپر یہ تو سیاست. مارکو صاحب، میں یہاں پہ نا میں آئی وٹنس ہوں. یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے. یہاں پر ایک عورت جو ہے وہ مرزا مسرور کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جو ہم سے اوپر والے عہدیداران ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہم سے زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے روکا جائے. اور مرزا مسرور صاحب کے الفاظ ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں، جیسے کہ میں نے وظیفے میں بتایا کہ 6 ماہ تک آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور اگر پھر بھی جب وہ زیادتی کرے تب اس کے لیے دعا کی جائے، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر میرے پاس خط لکھیں مجھے. اور اگر یہ سوچ سمجھ کے لکھیے گا کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے بارے میں پھر بعد میں مجھے لوگ سفارشیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کے لیے پھر مجھے ان کی بات ماننی پڑے. تو میرا ایک سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ آپ لوگ سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہ ضرورت پڑ گئی یہ بات کرنے کی کہ جناب ایسے لوگوں کی کمپلینیں مت کریں، پھر لوگ اس کی سفارشیں لے کے آ جائیں گے. یار doesn't make any sense. جی. اور اگر
अभी अभी अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो वो मैं निदा नसर की वो ऑडियो सुना देता हूँ। नहीं, और ये जो आप जी, मैंने वो सुनी है, शायद से मैंने वो सुनी है। जो आप बात कर रहे हैं ना हज़रत साहब, वो मुख्तसर सी बात है कि उन्होंने कहा कि जी आप दुआ करें इन रोज़ेदारों के लिए।